Hello everyone, how are you all? I hope you all are very fine. So, today I'm here with you to discuss the very important thing that can change your life. So, come fast to join this changeable event of your life. I'm still waiting for all you. So, as we all know that it's the time of lockdown period and that period have changed the life of many people. So, how you can change your life in this COVID-19 period. I know it's a very difficult to even for some people to get employment in this period because many of people are getting unemployed due to some of the reasons. So one basic reason that I have found of their unemployment, do you know what is that? It was the language. It was their communication skill that they were not able to get this opportunity. They were find difficult for them to get this opportunity. Come fast. Once again, I'm talking to you that so share it this with your friend also so they can also have the opportunity to change their life. So the basic thing, the basic funda I'm going to still here is that the communication skills. It's very important for us to have a grip on this communication skills. Sometime if we do not get something, we starting blaming others. It's human nature. We start blaming others for this thing. So first and the basic thing, keep in your mind that stop blaming others for your failures. अगर आप कभी किसी चीज़ में फेल हो जाते हो और आप उसका ब्लेम औरों को डाल रहे हो तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट है आपका. Because whenever there is a success, you are getting the credit of your own. So why your failure is the reason of others? Your failure is the also reason of you. But how you can turn your failure into the success? Here I'm telling the story about you, that how you can really, if you want to change your life, that how you can change the life. Please come fast. We are going to start here. First of all, remove all the negativity all around you, that you cannot do this and you cannot do that. इस चीज को अपने माइंड से पहले क्लियर कर दीजिए. ऐसा कुछ भी नहीं है आप जिस चीज को आप कर नहीं सकते. द फर्स्ट एंड द बेसिक थिंग दैट आई एम डिस्कसिंग हियर इज द लैंग्वेज, द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. What do you think language plays a role in your life? Some people say that it's just a language. Even I remember one of my incident. I told it to my friend that you should speak at least some words in English. Then he said, "Why should I speak? Why I don't need it to speak. You are a teacher. You need it. You are going to school and you have to teach the students. So you need this language." But I told him that you are not speaking with the public, you are not speaking with your children, you are not speaking with your wife. So public speaking skills is required by everyone, not even for your a single teacher or any professionalist. It is very important for all the people who are dealing with the society, whether it is a children, whether it is a teacher, whether it is any professionalist. If you want to represent yourself in a better way, so you have to communicate them in a good way or very effective way. So how you can change your life? So for changing your life, I'm here. This June, I'm going to organize a camp for you, personality development camp through online medium from 8 June to 21 June. You can join this camp to improve your personality. अब आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ये होंगे कि मुझे क्या ज़रूरत है, ये ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग में ऐसा कुछ नहीं होता. और ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं कोई मैजिशियन हूँ कि मैं कोई जादू भर दूंगा आप में और आप 15 दिनों के अंदर इंग्लिश बोलना सीख जाओगे. बट I'll try to give you guidance that how you can create an atmosphere for you, how you can create effective talk, how you can communicate easily with others, how you can face the interviews, how you can
talk to the parents, how you can deal with your customer, how you can treat your employees, how you can deal with your boss. All these things you have to follow the whole life with you. So I don't think so you should uh, leave the opportunity. It's a golden opportunity because we all are free in this lockdown period. और इस लॉकडाउन पीरियड में भी हम अगर अपने आप में चेंजेस नहीं ला सकते, पहले तो हमारे पास बहुत सारे रीज़न होते हैं, अरे यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता है, बहुत बिजी लाइफ है मेरी। तो उस बिजी सी लाइफ में अगर आप अपने लिए कुछ इम्पोर्टेंट, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अगर आप अपने लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पल नहीं निकाल सकते, तो मैं नहीं सोचता कि आप अपनी लाइफ को चेंज करने में बिलीव रखते हो। लाइफ चेंजर जो होता है ना, इवन मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं भी आप जैसे ही था जब इट वॉज द ईयर 2014, it was the year 2014 and we were going for a movie, to watching a movie in a theater. Then one of my friends suddenly told me that there is a seminar is going on English speaking course or any other things, that how you can improve your English speaking. I said छोड़ ना यार, क्या करते हैं, मूवी देखेंगे जाके, यहाँ पे क्या इंग्लिश स्पीकिंग कैंप में रखा हुआ है। तो उसने बहुत फोर्स किया मुझे, वो नहीं बोला कि आज तो चलना यार, मैंने तो टिकट ली हुई है, या मुझे इस कैंप को अटेंड करना है, भाई वो टीचर आ रहा है, बहुत बढ़िया टीचर आ रहा है ये। मैंने कहा देख भाई, मेरे मूवी के पैसे खराब हो गए ना, तो तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा। मतलब उस टाइम ना हमारा ऐसा होता है कि यार 3 घंटे मूवी देखूंगा, एंजॉय करूंगा, 3 घंटे इसको कौन सुनेगा। बट द डे रियली चेंज माई लाइफ। उस दिन को मैं आज भी याद रखता हूँ। उस दिन के लिए मैं उस फ्रेंड का भी मेरा शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, जिसने मुझे ये चांस दिया कि मैं वाकई में अपनी लाइफ को चेंज कर सका। तो वो जैसी मोमेंट मैंने एंटर करा उस हॉल में, उस कम्युनिटी हॉल में, the earlier 10 minute it was boring for me because she was mostly speaking the words in English, and I was understanding, not even I was not illiterate, पढ़ा अनपढ़ थोड़ी था, कुछ समझ आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, कुछ ऊपर से जा रहा था। सारे हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, मुझे लगा भाई शायद ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे इसलिए तालियां बजा रहे हैं। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ, उसने कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करे, ऐसी कुछ चीज़ें डिस्कस करी। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, और जब तक वो सेमिनार चलता रहा, यू गाइज कैन नॉट बिलीव, मेरी नज़र 1 मिनट भी नहीं हटी। 1 मिनट के लिए भी मैं उस बंदे को इग्नोर नहीं कर पाया, उसकी आवाज़ को नहीं सुन, मैं वो हर एक जो डिस्टरबेंस थी ना उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं से वो डिस्टरबेंस क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, और मैं एक एक मोमेंट इसका कैप्चर कर लूँ अपने माइंड में। और वो डे के बाद मैं उस पर्सन को मिलने के लिए बहुत तरसता था कि कैसे, मतलब इसने अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव किया होगा, कैसे इसने इतनी अच्छी चीज़ों को ग्रैस्प किया होगा। ही टोल्ड मी ओनली वन थिंग, इट इज़ द यू दैट कैन चेंज योर लाइफ। ये सिर्फ तुम ही हो जो अपनी लाइफ को बदल सकते हो। नो वन विल कम फॉर यू टू चेंज योर लाइफ। कोई आपकी लाइफ चेंज करने नहीं आने वाला है। तो अगर आप ही अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते तो डू नॉट ब्लेम अदर्स। औरों को ब्लेम करना क्या कर दो, बंद कर दो। अगर आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट खुद लेना चाहते हो, भी मैं सक्सेस हुआ, मैं रिजल्ट हुआ, इसमें मैंने तो बहुत लेबर करी थी, बहुत एफर्ट्स करे थे, तो आज जब वो फेलियर हुआ है तो आप ये बात क्यों नहीं कहते कि मैंने कुछ भी एफर्ट्स नहीं करे थे, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। अब मैं कल को ये कैंप अगर मेरा ओवर हो जाता है ना, तो बहुत सारे लोग अगर ये कहें ना, यार ये अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस हो गई, मुझे जरूर ज्वाइन करना चाहिए था। अरे क्या जाता था, 500 रुपये तो थे, एटलीस्ट कुछ सीख लेता घर बैठ के। ये वर्ड्स आप अपने आप को ना बोलो, आप अपने आप को ना कहो, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि आपको ये कैंप जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और सिर्फ इसी कैंप की बात नहीं, आपको इसको ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, आपको इसको ज्वाइन करने के बाद अपने आप को चेंज लाना जरूरी है। हम क्या देते हैं, बट I want to change my life now. So I created an atmosphere with some of my friends, with some of my teacher. I started speaking in earlier. I hardly spoke some words, but after that I started. Some words were correct, some was incorrect, but it gave me a confidence. Now today, I can easily express my ideas to others. I can easily communicate with my principal, with my teachers, with my students in a very effective way.
इवन आई नो दैट हाउ टू टेकल माई पेरेंट्स इन अ पॉजिटिव टोन। कई बार ऐसा होता है कि आप, खासकर जो टीचर्स के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें, सपोज अगर आप किसी पेरेंट्स ने आपको किसी दूसरे टीचर के बारे में कुछ भी क्रिटिसाइजिंग सा बोला है, तो आप उसे अप्रिशिएट मत करो। आप अपने एज अ टीचर भी पर्सपेक्टिव को आपको सोचना चाहिए कि आज अगर उसमें कमियां हैं तो क्या आप परफेक्ट और प्रॉपरली तरीके से, सर हाँ आई विल टॉक टू द टीचर, ही विल वर्क ऑन योर स्टूडेंट, बस इतना कहकर आप अपनी जो है दोनों वे में पॉजिटिव चीज़ों को रख सकते हो। पेरेंट्स को डील करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टीचर के लिए। तो पेरेंट्स को सेटिस्फाई कराना, आप सिर्फ खाली बातों से सेटिस्फाई नहीं कराओगे। मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ बातें करते रहो, इफेक्टिव बातें होनी चाहिए, आपके वर्क भी इफेक्टिव होंगे। और वर्क इफेक्टिव कब होंगे? जब हम वही करते हैं जो हमारे मुंह से निकलता है। रियलिटी है ये। अगर मैं बोल रहा हूँ भाई मैं आपके बच्चे पे वर्क करूंगा मैम, आई एम वर्किंग ऑन योर चाइल्ड, स्पेशली आई एम वेरी कंसर्न अबाउट योर चाइल्ड, आई डेली गिव हिम द स्पेशल होमवर्क, तो पेरेंट्स भी सेटिस्फाई होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बोल रहे होगे, आप उसमें से कुछ ना कुछ कर भी रहे होगे उस बच्चे के लिए। तो कैसे आप जो है टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हो इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ हम सबको पता है कि ये जो पीरियड हमारे लिए चल रहा है ये हमें दोनों तरह का ट्रॉमा दे रहा है। फाइनेंशियली भी हम बहुत वो हो रहे हैं और इमोशनली भी, क्योंकि कई लोग अब फाइनेंशियली वीक होने की वजह से अपने इमोशंस खो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि क्या मैं उससे सफ़र नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ड्रीम्स हैं, मैं अपनी इस ड्रीम्स को भूल नहीं सकता। और मैंने देखा इन अर्लियर 40 to 50 days, आई आई वॉज गिविंग द लेक्चर ऑनलाइन थ्रू classes, through the live classes to my students, but still I found that I should work something more on my language, because I am spending more than 20, all I can say now, the whole day with my parents, and they are speaking in their regional language whatever they are talking to. But I inspired them. I also motivate my siblings also, that you should at least speak some few words that can be helpful to you and for even me also. I daily try to read a newspaper to find सम न्यू वर्ड्स फॉर मी। एटलीस्ट मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने लिए 10 वोकेबलरी डेली ढूंढता हूँ। और इसमें भी मैं अब सिर्फ आपसे इतना ही चाहता हूँ कि अगर मान लो हम 40 लोग भी इस कैंप में जुड़ते हैं, मैं 10 वोकेबलरी आपके पास डेली भेजूंगा, तो उन 40 बच्चों से भी मैं डेली 10 वोकेबलरीज मंगाऊंगा। तो हमारे पास डेली कितने वर्ड्स हो गए सीखने के लिए? 400 वर्ड्स। क्या बोल पाते हैं जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं? तो हम जो वर्ड्स देख ही नहीं रहे, हमने ये वर्ड्स पहले सुने थे, क्वारंटाइन या आइसोलेशन। इन वर्ड्स को हमने सुना था। नाउ डेज वी आर लिसनिंग दिस वर्ड्स, सो वी आर गेटिंग देयर मीनिंग एग्जैक्टली। एपिडेमिक, और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम सुन रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं। बट first of all, again I'm repeating that from 8 June to 21 June I am going to start my camp, and in this camp if you really want to change your life, so you can join it. Surely you will realize after attending the camp that I have changed myself, at least not all, but कुछ मैंने अपने आप में चेंज करा है। एटलीस्ट मुझे ये पता चल गया, यू नो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स जाते भी अपने बच्चों के एडमिशन्स के लिए एक हाई क्वालिफाइड स्कूल्स में जाते हैं, तो बट दे शोज टू देम द लैंग्वेज। और टीचिंग फैकल्टी तो सबकी लगभग ऑलमोस्ट सभी है, सबने पढ़ाने तो वही सब्जेक्ट हैं, वही चैप्टर्स ही हैं। वट इज इम्प्रेसिंग देम इज देयर लैंग्वेज एंड देयर कम्युनिकेशन स्किल्स टू देम। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको पता है इतने हाई फाई स्कूल्स में पढ़ने के बावजूद भी बच्चे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर नॉट सीरियस अबाउट द कम्युनिकेशन। इवन द स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, दे थिंक दैट वाई दे डू नॉट नीड दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज फॉर देम। बट don't forget beta, you have to give an interview in your life. Everyone has to face an interview. So whenever you are going for an interview, you have to keep the thing in your mind, the interviewer will face you with a ग्रेट कॉन्फिडेंस। जो आपके सामने बैठा है वो आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल लेकर बैठा हुआ है और वो आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेगा। तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज तो आप होगी, ऑब्वियसली बात, आप सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो, उसके बावजूद
बाद में आपने ये चीज़ें भी माइंड में रखनी है कि फर्स्ट जो इम्प्रेशन होगा वो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, वो मेरा कम्युनिकेशन लेवल होगा कि मैं उससे कैसे बात करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स ही उसको पसंद नहीं आते तो मेरे सब्जेक्ट नॉलेज तक तो वो बहुत बाद की बात है, पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अब बात करता हूँ नेटवर्कर्स की, जो आजकल घूम रहे हैं हमारे, चाहे फॉरएवर्स के हो गए, चाहे वेस्टीज हो गया, या कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप सेल कर रहे हो। आपको पता है आपके प्रोडक्ट या आपकी बातें लोग क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि आप सबसे पहले ही जो है ना गलत तरह से कम्युनिकेट करते हो। अरे फोन करके कहते हो भाई मुझे ना तुझे एक प्लान बताना है, तेरी लाइफ बदल जाएगी। अरे नहीं सुनना मुझे कोई प्लान, वाई शुड आई लिसन यू? आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैं आपके सारे प्लान सुनने के लिए तैयार हो जाऊंगा, आपका सारा काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। सिर्फ आप मुझे ये बेसिक से क्वेश्चन का आंसर दे दो, वाई शुड आई लिसन टू यू? मैं आपको क्यों सुनूं? आप उसको इस क्वेश्चन का अगर आंसर दे पाते हो ना प्रॉपर वे में, इफेक्टिव वे में, देन ही विल लिसन यू विद अ ग्रेट डेडिकेशन and with great enthusiasm. But if you are unable to give him answer, then don't think that he will buy your plan and he will join you. Sorry, you will be rejected. Similar for MR, when any MR goes to a doctor for showing the new medicines or showing the new product of his company, if his communication skill is poor, he cannot convince the doctor to buy the goods. डॉक्टर ने तो क्या है, प्रिस्क्राइब करना है, आप जो भी दोगे उसको अगर लगेगा उसका बिली बेनिफिशियल है, तो बेनिफिशियल बताने के लिए आपको डॉक्टर को इम्प्रेस करना पड़ेगा। तो आपको कैसे उसको इम्प्रेस करना पड़ेगा, कैसे इसको, आप स्टार्टिंग से जाती है अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलने क्यों लग जाते हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता। आप उसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स की जो पहचान होती है ना, कभी भी एक पर्सन, आपको पता है किस चीज़ का भूखा होता है? तारीफ का भूखा होता है। झूठी तारीफ नहीं होनी चाहिए कभी भी। ऐसा नहीं कि आप किसी काले व्यक्ति को कहते हो अरे नहीं यार तू तो बहुत गोरा हो गया है, तू तो बहुत स्मार्ट हो गया है, तो वो झूठी तारीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप झूठी तारीफ करोगे तो वो साफ पता चल जाएगा कि वो गलत है, वो आपके इंप्रेशन को और भी क्या कर देगा, खराब कर देगा। अब सिर्फ जो आपको मेजर वर्क करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर का एग्जाम्पल लेता हूँ। आप किसी डॉक्टर की क्लिनिक या किसी छोटे से मैटरनिटी जो भी उनका सेंटर है, नर्सिंग सेंटर, आप उसमें जाते हो, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? सर जब मैं बाहर बैठा था ना, when I was sitting outside, you can use the words in Hindi or English, might doesn't matter, but whenever you are using the words in a English, it will create a positive effect on the others also, when I was sitting outside, but I noticed that your staff is really working good and the patient are also very satisfied from you doctor. हाउ आप इतना टाइम कैसे लगाते हो, मतलब कैसे आप इतना, मतलब हर एक पेशेंट के ऊपर प्रॉपर टाइम लगाकर उन्हें अटेंड करते हो? तो ये सारी चीज़ें जब आप उनसे डिस्कस करते हो, वो हाँ कहेगा अरे यार ये तो हमारा काम है, अगर हम उन्हें नहीं देखेंगे, तो वो उसको लगेगा कि हाँ आप उसको वाकई में कुछ कहते हो या वाकई में आप उसके साथ कुछ करना चाहते हो, उससे डिस्कस करना चाहते हो, तो वो आपको सुनेगा। सो never taking much of your time, now I'm going to discuss the major thing of my camp that I am discussing with you. In my this camp, what is the basic thing I'm discussing here, that how you can communicate with the normal people, यानी कॉमन पीपल से आप जब आप कॉमन कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको कैसा ध्यान रखना चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज हाउ अ सेल्समैन शुड कम्युनिकेट। आप ये मत सोचो कि आप सिर्फ यहीं बरवाला हिसार तक ही सेल्समैनशिप करते रहोगे। आप किसी अच्छे फॉरेन में या किसी अच्छे मॉल में जाकर अगर आपको कल को अपॉर्चुनिटी मिलती है काम की, तो आप उसे कैसे ग्रीट करोगे? मोस्टली पीपल को तो ये भी नहीं पता होता कि आप उन्हें ग्रीट कैसे कर रहे हैं। उनका ग्रीटिंग वे ऑफ ग्रीटिंग ही बहुत गलत होता है, गलत तरीके से ग्रीट कर जाते हैं, जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और द बेसिक थिंग दैट हाउ यू हैव टू डील विद द हायर अथॉरिटी, क्योंकि बच्चों से तो हम कम्युनिकेट करते हैं, तो हम क्योंकि हम वहाँ पे सीनियर होते हैं ना, तो हम उन्हें दबा देते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं, नहीं तू हमारी गलती निकालेगा क्या, तू हमें सिखाएगा क्या, ये हम बोलने लग जाते हैं। वी नेवर अंडरस्टैंड दैट दे आर ऑल्सो ऑन द लर्निंग स्टेज एंड दे कैन टीच अस मैनी थिंग। तो हमें जब हायर अथॉरिटी को डील करना होता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वॉइस का टेक्सचर कैसा होना चाहिए, यानी किस वॉइस में, किस वे में हमें अपने हायर अथॉरिटी से बात करना चाहिए, कैसे हम अपने हायर अथॉरिटीज को इम्प्रेस कर सकते हैं। हाउ यू कैन इम्प्रेस इन योर फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंटरव्यू टू योर इंटरव्यूअर्स, एंड ही विल श्योरली से यू दैट यू कैन कम टुमारो, यू आर ज्वाइन टुडे एंड यू कैन कम टुमारो। जब आप ये वर्ड सुनोगे, आई डोंट थिंक सो आपके लिए तो बहुत, मतलब बहुत
अलग सी फीलिंग होती है जब हम ये चीज़ें हम अपने लिए सुनते हैं। तो मैं यही चीज़ें डिस्कस करने जाऊंगा कि आपको इंटरव्यू कैसे फेस करना चाहिए, आपको क्लासरूम कन्वर्सेशन, खासकर टीचर्स के लिए क्लासरूम कन्वर्सेशन कैसा होना चाहिए, पेरेंट्स से कम्युनिकेट कैसे करना है आपने, क्योंकि पेरेंट्स हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, तो पेरेंट्स को कैसे कम्युनिकेट करना है। और इवन फॉर अ हायर अथॉरिटी आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग दैट फॉर प्रिंसिपल एंड द हायर अथॉरिटी डायरेक्टर और द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट हाउ दे हैव टू डील देयर एम्प्लॉयज। क्योंकि आपका भी जो वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए ना, हाँ आप हायर हो ये बात आपको पता है, लेकिन आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए ना, वो उसमें भी कुछ ना कुछ टेक्सचर होता है, कुछ ना कुछ पोलाइटनेस होनी चाहिए। और कहाँ आपको कमांड रखनी है, कहाँ वर्ड्स थोड़े शार्प रखने हैं, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। आप वर्ड्स तो बोल रहे हो गेट आउट फ्रॉम हियर, तो वो अरे गेट आउट फ्रॉम हियर, तो शार्पनेस और थिकनेस आपके वर्ड्स में कहाँ होनी चाहिए, वो आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, आई एम रियली वेरी इफेक्टिव वे टू वर्किंग ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज आपकी स्पीकिंग तभी सुधर सकती है जब आपके वर्ड्स जो होंगे राइटली प्रोनाउंस्ड होंगे। तो वी आर वर्किंग on here the majorly on vocabulary and pronunciation and the daily usable sentence in according to our environment, in which environment we are dealing। for a teacher अलग होंगे, for a salesman के लिए अलग होंगे, क्योंकि the basic funda is that you have to deal the different audience, so you cannot use the same style of talking, तो यू हैव टू यूज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ टॉकिंग विद देम। तो आपको उनके साथ अलग अलग वे में क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। आप अगर कॉपी करने की कोशिश करोगे ना किसी और के वर्ड्स, तो फेल हो जाओगे बेटा, क्योंकि कॉपी तो कभी कोई किसी को कर ही नहीं पाया, हर किसी के अंदर अपना ही एक अनोखा टैलेंट होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी भी मेरे इस कैंप को ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद अपने आप जो है उस चीज़ को फील करें कि वाकई मैं आपको इसमें एक बेनिफिट और दूंगा। पहले क्या होता था, मैं यहाँ पर आप सिर्फ अक्रॉस द बरवाला के लोगों को ही टीच कर पाता था, बट इस बार मुझे एक मौका मिला आप सबके साथ कि मैं अब यहाँ से कहीं से भी, चाहे कोई दिल्ली से बिलोंग करता है, चाहे कोई हिसार से, चाहे कोई टोहाना से, दे ऑल्सो कैन ज्वाइन मी through WhatsApp. I will provide you the recorded videos also that can you can save them for your future also. Or the major thing you have to keep in your mind that you have to keep practicing, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको तभी अच्छे से क्लियर हो सकती है जब आप उसकी प्रैक्टिसिंग करते रहोगे। अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे तो आप ये सोच लो कि आप उसी दिन से क्या हो गए हो, आपके जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि लर्निंग प्रोसेस को जारी रखने के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहना जरूरी है। अगर आप नया नहीं करोगे, आप नया नहीं सीखोगे, तो स्टॉप, डोंट थिंक दैट यू कैन अचीव योर गोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर योर ड्रीम, नेवर फॉरगेट इट। अभी भी अपने ड्रीम को मत भूलो, और उस ड्रीम के रिगार्डिंग वर्क भी करते रहो। खाली सपना सपना, मेरा सपना है रे मैं बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, इट्स माई ड्रीम यू नो। और पेरेंट्स के लिए सबसे अशेम्ड बात पता है क्या होती है, जब वो अपने बहुत अच्छे वे में कहते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छे हाईली एजुकेटेड स्कूल में जाता है, और इवन अ क्वेश्चन वर आस्क्ड बाय टू देयर चिल्ड्रन बाय समवन एंड ही वाज अनएबल टू आंसर, वो एम्बैरेसमेंट जो पेरेंट्स के फेस पे होती है ना, वो आप फील भी नहीं कर सकते कि कैसा उन्हें लगता है कि उनका 10 साल का बच्चा अगर ये भी आंसर नहीं दे सकता दैट वट इज़ योर फादर्स प्रोफेशन एंड वट आर ही डूइंग नाउ अ डेज। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चनिंग तो आपको सिखाने पड़ेंगे। और मेरा ये पेरेंट्स कम्युनिटी से भी बहुत मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा ट्राई कर रहा है, लर्निंग स्टेज पर है, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते तो प्लीज़ डो नॉट बी एन ऑब्स्टेकल फॉर हिम और हर, कि आप उसके लिए एक ऑब्स्टेकल ना बने, उसके लिए एक प्रॉब्लम ना बने, आप उसे एक चांस दें। एटलीस्ट उसके साथ आप खुद भी एनरोल करें। मेरी मदर इज नाउ अ डे शी कैन स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश very well with me. Even she is a teacher. She cannot communicate all the words in a proper way, but she is speaking and with a great confidence. You know, you can assume if she have a son of 26 or 27-year old, and after that she is trying to speak the words. That's a great thing.
और मेरी मदर, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन है। मैं अपने फ्रेंड्स को भी ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये बात अलग है कि जब हम एक फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अलग होती हैं, बट इन योर लाइफ कभी मैं ये नहीं चाहूँगा कि आपको इस बात के लिए पछताना पड़े कि काश मैं ये कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से अचीव कर लेता। मैंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू से रिजेक्ट होते हुए देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन स्किल्स, कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं थे, दे वर नॉट एबल टू आंसर द बेसिक क्वेश्चन टू द इंटरव्यूअर, सो हाउ यू कैन थिंक दैट ही विल अपॉइंट यू। और ये मत सोचिए कि कई लोग कहते हैं यार यार मेरे तो मैं कितना ही सीख लूँ, मेरी तो लैंग्वेज का टच आएगा। क्यों आएगा लैंग्वेज का टच? इट्स इन योर हैंड, यू कैन चेंज योर टच ऑल्सो। वो टच आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, यू हैव टू वर्क डीपली ऑन देम। द पीपल बिलोंग्स टू द remoted एरिया और द विलेज from which they have been speaking from 10, 20 years the same language, so it's difficult for them, you know, they cannot easily change their life. But if they work, surely I can tell them that they can change their life. So I hope you will get all the things here. So I'm repeating again, from 8 June to 21 June, I'm coming to give you a surprise for the personality development camp that can really change the life of your all. And after attending that camp, what changes you will find in yourself, आप क्या क्या changes आप में पाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो बच्चे हैं, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें स्टेज फोबिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो कभी भी स्टेज पे डालने से नहीं डरेंगे। अगर आप अपनी चाइल्डहुड पीरियड में कभी स्टेज पर नहीं गए ना, तो आप पूरी जिंदगी कभी स्टेज पर नहीं बोल पाओगे, ये लोग कहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, लर्निंग स्टेज जो होती है ना, लेकिन अगर हम चाइल्डहुड स्टेज पर चले जाते हैं तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो हमारा थर्ड लेवल तक पहुंच जाता है, जो हम फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम एक स्टेज फियर होता है ना, वो पहले ही खत्म करके आ चुके थे। अब सिर्फ हमें क्या चाहिए? हमें प्रॉपर वर्ड्स चाहिए, एक अच्छे से कम्युनिकेशन चैनल चाहिए, जिससे हम अपनी बातें क्या कर सके, लोगों तक रिप्रेजेंट करा सकें। तो एक इंसिडेंट आपका, थोड़ा सा टाइम मैं और लेना चाहूंगा आपके साथ। तो क्या इंसिडेंट है वो, कि कैसे मेरा एक फ्रेंड अपना एक इंसिडेंट बताता है कि जब वो एक जगह पर इंटरव्यू देने गया, एंड ही वॉज रियली गुड इन मैथ्स, कि वो बहुत गुड है मैथ में, नो डाउट। उसकी जितना मैथ्स अच्छा बहुत कोई पढ़ा भी नहीं सकता। बट व्हेन ही फेस्ड एन इंटरव्यू, दे नेवर टॉक्ड अबाउट द हिज सब्जेक्ट। उन्होंने उसके सब्जेक्ट की बात ही नहीं करी। दे फर्स्ट आस्क्ड देम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ही सेड, आई एम, माय नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस। नो, दिस इट्स नॉट द वे टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये कोई वे नहीं हुआ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने का। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं करा पा रहे, तो आप अपनी क्लास को कैसे टैकल करेंगे? और फॉर टीचिंग मैथ, सॉरी सर, वी कैन नॉट allow you to speak a word of Hindi in our classroom. So do you think it's very इम्पॉसिबल, आई कैन से? क्योंकि मैथ्स पढ़ाने के लिए टीचर को बाइलिंगुअल होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाइलिंगुअल हुए बिना मैथ्स पढ़ाया नहीं जा सकता। यू कैन टीच द एवरी सब्जेक्ट, बट यू कैन यूज द कॉमन वोकैबुलरी, दैट वी कैन ऐड 5 + 3 then become 8, 5 × 3 is to 15. But the thing you have is the confidence. If he said that day that, ma'am, I will deal, surely it doesn't matter for me, you know, that I have to teach Hindi medium or English medium. I'm good at both. तो दोनों में बहुत अच्छा हूँ, दोनों को अच्छे से डील कर सकता हूँ। सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके ड्रीम्स आपको पूरा करा सकता है। उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए गट्स तो सिर्फ आप में ही होने चाहिए। अगर वो गट्स आप में नहीं है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स आप में नहीं है, वो कॉन्फिडेंस आप में नहीं है, तो सॉरी, आप पूरी लाइफ कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप अगर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते, अभी भी बहुत मौका है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, बहुत सारे चांसेस आपको मिलेंगे। लेकिन मैंने सिर्फ इसी पीरियड को क्यों चुना? एक तो बच्चे अब इस पीरियड में बहुत फ्री है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल हैव अनाउंस्ड देयर हॉलीडेज एंड समर वेकेशंस, सो नाउ दे कैन easily join the camp or they can easily work on them. Or the basic thing is the teacher is also free and parents is also free minded nowadays, so they can also give the time to their
चिल्ड्रन दैट हाउ यू शुड स्पीक. अब बच्चा बोल रहा है, अब छोटे छोटे वर्ड्स भी वो बोलना स्टार्ट कर देता है ना, मतलब मामा आई वॉन्ट सम चपाती, आई वॉन्ट टू चपाती. तो आप उस बच्चे को क्या करो, इंस्पायर करो, दैट गुड बेटा आई एम जस्ट गिविंग यू. इस तरह का कम्युनिकेशन ही तो करना है, और क्या करना है, और कौन सा हमने यहाँ पे पहाड़ तोड़ने हैं. हमने सिर्फ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपको सिखानी है. और उस बेसिक बेनिफिट आपके लिए है कि आप उस कम्युनिकेशन स्किल से अपने ड्रीम्स को क्या कर जाओ, पूरा कर जाओ. एंड वंस अगेन आई एम wishing you the best of luck for your this period. Thank you. Bye.